Hey guys, welcome back to the channel. Welcome to Route 99. If you are an MBA aspirant in India and if you are confused about which exam to give, CAT, SAT, NMAT, SNAP, CMAT, don't worry. By the end of this video, everything will be covered. So stay till the end. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आकाश सर और आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस चैनल पे पहले कभी नहीं आया है. अ कंप्लीट स्लाइड बाय स्लाइड ब्रेक डाउन ऑफ ऑल 10 MBA एग्जाम्स इन इंडिया. एक वीडियो सब कुछ, there's no flub. हम कवर करेंगे कैट, सैट, एनमैट, स्नैप, आईएफटी, सीमैट, एमएसटी, मैट, एटमैट और जीमैट. हर एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा कौन कंडक्ट करता है, पैटर्न क्या होता है, फीस कितनी है, कौन से कॉलेजेस लगते हैं एंड परसेंटाइल कितना चाहिए. And at the end of this video, I'll give you a personalized strategy depending upon whether you are a fresher, a working professional, whether you have 3 months or 12 months of work ex, and if you're targeting any college and what kind of colleges that you should target. So please bookmark this video, share it to your friends, and let's get started. This presentation is a complete reference to all 10 major MBA entrance exams in India. These are CAT, SAT, NMAT, SNAP, MSTCT, MAT, ATMA, IFT, and GMAT. These 10 exams together cover virtually every MBA college in India, from IIMs to the top 150 B schools of the country. Whether you're starting this MBA journey or if you're in the mid of preparation and if you're feeling overwhelmed, this video is your anchor. So let's build the full picture first and then zoom into each exam. चलो पूरी लैंडस्केप समझते हैं. इस टेबल को अपना एक मैप समझो. थिंक ऑफ दिस टेबल बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी as you need to understand the full terrain. Number one, CAT. CAT is conducted by IIMs on a rotation basis. Every year, a different IIM takes the charge. CAT unlocks 21 IIMs plus FMS Delhi, MDI, SPJMR, JBIMS, IFT. Over 3 lakh aspirants appear for CAT, and this is the apex. So, if you prepare well for CAT, every other exam becomes easier. Number two, SAT. It is conducted by XLRI Jamshedpur, one of the oldest and most respected B school in country. SAT is valid at 250 plus B schools in 109 cities. XLRI's BM and HRM programs are world-class programs and recruiters love this program. Number three, NMAT by GMAT. This is the only Indian MBA exam which is conducted by same body that conducts GMAT globally. GMAT brings international credibility. NMS Mumbai and ISP CMP program use NMAT score. NMAT is conducted in 58 Indian cities and 21 cities abroad. Number four in the list is SNAP, Symbiosis own exam. So if you're targeting SIBM Pune, SMHRD or SIB on your list, you have to give SNAP exam. As simple as that. 3 attempts per year. Best of the 2 attempts will be taken into consideration. Fifth exam is IFT. It is taken by CAT. This is used to be a separate exam, but after 2023 to 2024, IFT uses CAT exam score directly. And this is an important news for aspirants. So you don't have to prepare for one more exam. If I talk about numbers from 6 to 10, CAT, apart from CAT, CMAT, MSCT, MAT, ATMA, and GMAT. Each exam has a different audience. CMAT and MSCT महाराष्ट्र के लिए गोल्ड माइन है. मैट और अटमा बैकअप एग्जाम से मल्टीपल विंडोज के साथ. GMAT एग्जीक्यूटिव्स के लिए सब डिटेल में आगे कवर करेंगे. Now, one of the biggest mistakes that MBA aspirants make is that not planning the exams. So, what happens? You register to the exam, you miss a window, or you miss 2 exams on the same date, and you will face a lot of issues during the whole journey. So, let me make you to the timeline. July 2025 to where your chat registrations open. Mark this as a calendar right now because you don't have to wait up to November to fill the ZAT form, right? So ZAT closes on December 5th. August 2025, both CAT and NMAT registration are going to start on that day. This is your busiest registration month. CAT exam के forms वही close होते हैं around September, August के आसपास. NMAT gets close around October 18th. So do both the exams आपको apply करना है. Then when it comes to October, SNAP registration opens and the NMAT also window opens. You can book your NMAT slot from October onwards. Book early for better time slot. When it comes to November, December, this is a peak time season where CAT आपका last week of November में conduct होगा. SNAP has 3 dates, 6th, 14th and 20th. Math also will be conducted in December. So this is one of the most intense period of the year. When it comes to January 2026, ZAT will be conducted in the first week. CMAT timeline would be tentatively around the 25th. And after that, January, you will be having 2 more shots to crack the MBA exams. Post that, in April and July, MSCT in ATMA will be conducted.
These are, I would say, late cycle exams. So if your November December performance did not go as planned, these exams give you a second chance for the admission in the same year. ठीक है? So let's be practical. थोड़ा पैसे की बात करते हैं क्योंकि money plays a very important role during your MBA exam. So let's talk about what is the fees of each and every exam. CAT 2600 rupees for general category, 1300 for SC ST PWD, ZAT 2200 base plus 200 rupees for each and every program when it comes to XLRI, NMAT के लिए 3000 rupees fees, and per attempt of for NMAT it will take cost you around 3000 rupees. When it comes to Snap, the fees is 2250. If I talk about the programs, per program के लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा. When it comes to CMAT, 2500 rupees for general category. When it comes to SC, ST, PWD, EWS, they have to pay 1250. Amazing concession है. When it comes to MSCET, you have to pay 1500 rupees, and it is one of the most affordable gateway to top MBA colleges in Mumbai. MAT cost around 2300 rupees for one mode, 4000 rupees if you are applying for CPT and PPT. ATMA की फीस है 2000 rupees. When it comes to GMAT, ये थोड़ा आउटलायर है. GMAT की फीस है $275 पर टेस्ट सेंटर, रफली 23,000. ऑनलाइन की फीस है अराउंड 300 रुपीज़. बट रिमेंबर ये करना है कि GMAT का स्कोर 5 साल के लिए वैलिड होता है. सो इफ़ यू आर पेइंग फॉर लॉन्ग टर्म एसेट, द GMAT इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम. अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देना चाहता हूँ. कैट सबसे ज़्यादा टाइम मांगता है, ऑलमोस्ट 6 से 9 मंथ्स. GMAT 3 to 6 months, एंड मैट 3 to 5 months. उसके बाद मैट और अटमा 2 से 3 महीने में हो जाएगा. सो आपको अपना टारगेट सेट करना है, उसके अनुसार प्लानिंग करनी है, राइट. कंप्लीट विदाउट स्पेंडिंग सीरियस टाइम ऑन कैट एग्जाम. कैट 2025 आई एम कोजी कोड कंडक्ट कर चुका है, एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 1 अगस्त को. 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था. ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल अपियर फॉर कैट, एंड आई वुड से दुनिया का मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज कैट. इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट पैटर्न, 3 सेक्शंस होंगे. VR से 24 क्वेश्चंस, DLR 22 क्वेश्चंस, QA 22 क्वेश्चंस, टोटल 120 मिनट्स, एंड सेक्शनल लिमिट इज 40 मिनट्स टिक. सेक्शन के बीच नहीं जा सकते. +3 फॉर पॉजिटिव मार्क्स, -1 फॉर गलत MCQ क्वेश्चन के लिए, एंड देयर विल बी सम टीटा क्वेश्चंस जहाँ आप टाइप कर सकते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. Now, CAT के through what are the colleges that are available? Top में there are 21 IIMs plus FMS Delhi, MDI Gurgaon, SPJMR, Blackie, JBIMS, IFT Delhi. Cutoff is around 99.5 percentile. उसके ऊपर Blackie which is अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, इनके लिए 99.5 प्लस परसेंटाइल चाहिए आपको. मिड टायर में the newer IIMs such as Trichy, IIM Udaipur, Rohtak, Kashipur, Shillong, Nagpur, and then there are 8 more IIMs into the picture. उसके अलावा आप IIMT गाजियाबाद, डॉम्स मद्रास, ये कॉलेजेस भी टारगेट कर सकते हो जहाँ कट ऑफ होता है 92 से 95 परसेंटाइल. नाउ एक्सेसिबल बी स्कूल में जिम गोवा, टापमी, KG सोमैया, इरमा, बीमटेक, वेलिंकर, ये ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ 80 to 92 परसेंटाइल स्कोर होता है. सो अगर आपको 99 परसेंटाइल नहीं आया है, इवन you will get decent colleges at 85 to 95 percentile. So मेरी एक एडवाइस रहेगी, ट्रीट इट लाइक अ मैराथन, नॉट जस्ट अ स्प्रिंट. जल्दी स्टार्ट करो. 8 months आर मिनिमम फॉर कैट, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स आर क्रैकिंग कैट विद इन 5 to 8 months. कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, देन मॉक्स पे जाओ, एम फॉर 99 परसेंटाइल एंड बिल्ड दैट मेंटालिटी. And always make sure that you have to write 15 to 20 mocks before getting into final exam. I would say actual exam. Number two in the list is SAT exam, Xavier Aptitude Test. It is a 75-year-old B school in the country and most respected B school. XLRI conducts, I would say the ZAMI, which is Xavier Institute of Management Institute, conduct करता है SAT exam. अगर एग्जाम डेट की बात करें 4 जनवरी, आई वुड से मेनली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम होता है. रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से 5 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा. 109 सिटीज़ में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. सो इट मीन्स एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है. अगर पैटर्न की बात करें तो 4 सेक्शंस रहेंगे. डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस, क्वांट एंड DLR 28 क्वेश्चंस, एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस. तो टोटल 95 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मिनट्स, +1 फॉर पॉजिटिव, -0.25 फॉर नेगेटिव, एंड उसके साथ GK क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे. सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. जैट को एक डिफरेंट एग्जाम बनाया जाता है बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, दिस आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशनल क्वेश्चंस ऑन बिजनेस डिलेमा, इथिकल सिनेरियो, मैनेजरल डिसीजंस. यू कांट प्रिपेयर फॉर DM द सेम वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर QA. उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस चाहिए एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर इट. एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, इससे हट गया है. अब एग्जाम पूरी ऑब्जेक्टिव है, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है. एंड
it is very easier to manage the time. If I talk about the colleges which are offered by ZAT, XLR, BM and HRM कोर्स है 95% प्लस परसेंटाइल भी मिलेगा. उसके अलावा एग्जाम भी IMT गाजियाबाद जिम गोवा 85 से 90 परसेंटाइल में आ जाएगा. एंड देर आर 150 to 200 B school which accept ZAT exam. If I talk about NMAT, NMAT by GMAT is likely another exam. It is a computer based, so you can take 3 attempts. You can choose your own test slot. Flexibility है. अगर आप नर्वस हो तो try to अप्लाई अगेन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स. एग्जाम विंडो की बात करें, नवंबर 5 से 19 दिसंबर का एनमैट एग्जाम रहेगा. एक एडिशनल फेज भी होता है 5 से 10 जनवरी 2026 तक. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 अगस्त से 18 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे. इफ आई टॉक अबाउट पैटर्न, 3 सेक्शंस होंगे. लैंग्वेज स्किल्स 36 क्वेश्चंस 28 मिनट्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 36 क्वेश्चन 52 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग 36 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, टोटल 108 क्वेश्चंस 120 मिनट्स. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. स्कोर आपका 36 से 360 रेंज में हो जाएगा. एंड टॉप बी स्कूल्स विच आर टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन आर SPJMR का GMP प्रोग्राम, ISB का CMP प्रोग्राम, इंक्लूडिंग KJ सोमैया, टापमी, ICFI. सो ये सब कॉलेजेस आर अंडर एनमैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली NMMS मुंबई. ठीक है. सो अगर एनमैट की बात करें, so try to attempt each and every question. Never leave a question blank. Even a random guess gives you 25% of the chance. And if your first attempt doesn't go well, you have 2 more shots. So definitely NMAT आपको देना चाहिए. Next exam in the list is SNAP. Is a symbiosis exam. And if you're essentially applying for SNAP institutes, I would say Symbiosis Institute, definitely take a shot on this. If I talk about SNAP, 3 test dates होती है, December 6th, 14th, 22. आप appear कर सकते हो and best of the score consider किया जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न, सबसे छोटा एमबीए एग्जाम है, 60 क्वेश्चन से 60 मिनट्स. इंग्लिश 15 क्वेश्चंस, क्वांट 20 क्वेश्चंस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस. मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, छोटे लेंथ से मत घबराना. पेपर फास्ट और ट्रिकी है. 60 क्वेश्चन 60 मिनट पर मिनट क्वेश्चन से, बफर कोई भी नहीं रहेगा. एवरी सेकंड मैटर्स. इन इफ टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस, यू कैन अपीयर फॉर SIBM पुणे, SMHRD जिसमें 90 प्लस परसेंटाइल लगता है. देन SIB, SIBM बेंगलोर, SIM नासिक 90 से 97 परसेंटाइल. लो परसेंटाइल आई वुड से 70 से 89 के अंदर भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे. पर प्रोग्राम आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा. पोस्ट दैट IFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नाउ कैट इज कंडक्टिंग IFT एग्जाम. एंड IFT इज नॉट कंडक्टेड बाय एनी बॉडी. अब डायरेक्टली कैट ही यूज करता है. सो द प्रोसेस वेरी सिंपल. आपको कैट देना है. यू हैव टू अप्लाई फॉर IFT इन बिटवीन September to December. यू विल गेट द शॉर्ट लिस्टेड. उसके बाद GD, SA एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट द एडमिशन. If I talk about the application fees, IB की फीस 3000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ फॉर SC ST PWD. BA की फीस 2000 रुपीज़ है. एंड जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रिजर्व है. कट ऑफ्स की बात करें, IFT दिल्ली के लिए आपको 97 परसेंटाइल चाहिए, कोलकाता के लिए 92 97 परसेंटाइल, काकिंदा कैंपस के लिए 92 परसेंटाइल. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड इफ यू आर टारगेटिंग 95 परसेंटाइल, IFT should be on your list. It is a government-based B school, I would say, and it is one of the B school which gives you one of the best ROI. Last B school is CMAT, Common Admission Test. It is conducted by NTA, and CMAT unlocks JBMS and SIMSRI. Exam date है January 25, 2026. That is the tentative. Registration start होता है 14 नवंबर से 24 नवंबर. आपको 10 दिन का विंडो मिल जाता है. एग्जाम, इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न, तो 5 सेक्शंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन, जिसके अंदर लैंग्वेज, QA, LRDI एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स, 180 मिनट्स, +4 for right question, -1 for negatives. And CMAT is an, I would say, one of the incredible value exam. Women, SC, ST, PWD, EWS कैंडिडेट के लिए 1200 रुपीज़ फीस है as compared to 2500 rupees. And you should definitely appear for CMAT exam in my opinion. Now let's talk about MSCET. It's Maharashtra's state board entrance exam, and in my view, it is one of the most underrated exam in India. Let me explain why. 1500 रुपये आप JBMS में एंट्री लेने के लिए पे कर रहे हो, जहाँ 2 साल की MBA आपकी कंप्लीट हो जाती है 4 से 6 लाख में, और प्लेसमेंट आपको लगती है 25 से 30 लाख रुपए की. इफ़ आई टॉक अबाउट की डेट्स, 2026 सेशन 6th 7th 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था. एंड एग्ज़ाम के बाद एक सेंट्रलाइज कैप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको सीट्स अलॉट की जाती है. अगर पैटर्न की बात करें, 200 MCQs होंगे, 150 मिनट, LR 75, QA 50 questions, verbal 50 questions, and AR consist of 25, which is abstract reasoning. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ा एडवांटेज है. हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होते हैं, 4 नहीं. If I talk about exam is heavily skewed towards logical and abstract reasoning. So if you are naturally strong in reasoning and pattern recognition, MSCT is your playground. Post that, MAT, which is Management Aptitude Test. It is conducted by AMI 4 times in a year, and it gives you flexibility to appear in December, February, May, and even June itself.
अगर पैटर्न की बात करें, 150 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस होगा। लैंग्वेज, मैथ, डेटा एनालिसिस, इंटेलिजेंस, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब चेक किया जाएगा। 120 मिनट्स होंगे आपके पास, +1 पर पॉजिटिव, -0.25 नेगेटिव, एंड कंपोजिट परसेंटाइल आपकी कंसिडर की जाएगी। जीके इज अ क्वालिफाइंग। सो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट, इफ आई टॉक अबाउट मैट एग्जाम, आपको इसके थ्रू 30 स्कूल्स इंडिया के टॉप नहीं मिल पाएंगे। अगर आपका ड्रीम है, आई एम एक्सल आ रहा है, मैट एग्जाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बट इफ यू नीड अ क्वालिटी MBA एजुकेशन फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, और इफ यू वांट अ बैकअप ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली अपीयर फॉर मैथ, जिसके थ्रू आपको क्राइस्ट, एमईटी, एनडीआईएम ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। अगर एटमा की बात करते हैं, इट इज कंडक्टेड बाय एम्स, विच एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स। इट ऑफर्स विंडो थ्रू आउट द ईयर। इफ आई टॉक अबाउट 2026 सेशंस, फेब्रुआरी 2022 तक कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑनलाइन प्रॉक्टेड एग्जाम होता है। अगर पैटर्न की बात करें, 6 सेक्शंस होता है, 30 क्वेश्चंस ईच, विच कंसिस्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स रहेंगे, 30 मिनट्स का एक कैप होता है आपके पास। एंड सेक्शन का टाइम खत्म होते ही आप, यू आर आउट ऑफ द मैट एग्जाम। सो मैट एक आइडियल रीजनल कॉलेजेस के थ्रू बेटर ऑप्शन रहेगा, जैसे वेलिंगकर हो गया, जयपुरिया, आईपी, पीएसजी, कोइम्बूर, ये सब कॉलेजेस एटमा स्कोर लेते हैं। जुलाई विंडो से 2026 में भी एडमिशन हो सकता है, अगर बाकी सब कॉलेजेस मिस हो गए तो। पोस्ट दैट जी मैट, ये सब इंडियन एग्जाम्स के रेस में डिफरेंट, आई वुड से अलग एग्जाम है। या परसेंटाइल वॉर या एग्जाम सीजन नहीं होता है। जी मैट is your passport to global MBA ecosystem. It is conducted year around at a Pearson VO center across India and globally. You can book a slot on any working day. 16 days gap is required between the retake. Maximum 5 attempts in a 12-month period, and score is valid for 5 years. So plan grow smartly, and GMAT can serve multiple application cycles. If I talk about focus addition, 3 sections होते हैं, QA 21 questions 45 minutes, VRC 23 क्वेश्चन 45 मिनट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, टोटल 2 घंटे होते हैं। और पोस्ट दैट, अगर आपको जीमेट क्रैक करना है, ट्राई टू स्कोर मोर देन 700। पोस्ट दैट, इंडिया में जीमेट के थ्रू व्हाट आर द कॉलेजेस दैट आर अवेलेबल। अगर 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो ISB will definitely take you into GMAT with a score of 690 to 730। IIM का PGPX, EPGP, IPMX, XLRI का GMP, SPJMR, ये सब कॉलेज अवेलेबल है। एंड हार्वर्ड, वॉर्टन, INSEAD, ये सब नॉन निगोशियबल ऑप्शंस है। So freshers, until unless you are applying to ISB's YLP program, which is Young Leaders program, you can skip GMAT and try to crack the CAT first। नाउ मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। ये स्लाइड मुझे सबसे वैल्यूएबल स्लाइड लगती है, क्योंकि एग्जाम्स जानना एक बात है, और कौन सा एग्जाम आपके लिए सही है, दैट इज द रियल गेम चेंजर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम एंगल्स। फर्स्ट वन, करियर स्टेज। अगर आप 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आई वुड से फ्रेशर हो, सो प्राइमरी कैट पे टारगेट करो, दूसरा एग्जाम हैट, फिर बैकअप के लिए एनमैट्स, स्नैप, ये सब एग्जाम टारगेट करो। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी अराउंड 7,500 रहेगी, एंड 6 से 9 मंथ का टाइम लगेगा। इफ आई टॉक अबाउट, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, द टारगेट कैट, सीमैट, MST CET, ये कॉम्बिनेशन देता है आपको JBI में, सेमश्री, केजीएसओ या वेलिंकर पुम्बा में। बहुत कम फीस है, एंड इंडियन MBA में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन वर्किंग प्रोफेशनल हो, 5 साल का वर्क एक्स हो चुका है आपका, तो रुको, जीमैट दे दो। पूरे इंडियन इकोसिस्टम को स्किप करो एंड गो थ्रू ISB by GMAT। GMAT is a globally respected MBA एग्जाम, एंड इट इज़ वैलिड अप फॉर 5 years, जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। मैक्सिमम सेफ्टी के लिए कैट, जैट, एनमैट, सीमैट देना है। इसके थ्रू IIMS, XLRI, ये सब कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। सो आप ये देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पॉजिटिव्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट अप्लाई फॉर एग्जाम। नाउ जियोग्राफी के अनुसार कॉलेजेस देखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट IIMS, कैट प्राइमरी, जैट सेकेंडरी, महाराष्ट्र से हो तो MSCT प्राइमरी, सीमैट सेकेंडरी, स्नैप, अगर सिम्बोसिस कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो स्नैप देना पड़ेगा, और अब्रॉड जाना चाहते हो तो GMAT प्राइमरी और NMAT सेकेंडरी, ये सब एग्जाम्स देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। 12 मंथ का टाइम है, तो डोंट गो फॉर एनी अदर एग्जाम, लेट्स फोकस ऑन कैट। 6 मंथ का टाइम है, तो कैट, जैट दोनों पे फोकस करो। यू कैन स्किप सीमैट एंड स्नैप। अगर 3 से 6 महीने का पीरियड है, देन यू कैन फोकस ऑन मैट, अटमा, स्नैप, सीमैट, if you are comfortable when it comes to these exams. Now, so whatever data that you have shown, all these numbers came from imcat.in, satonline, mba.com, snaptest, cmat. So these are the official sources, आप वहाँ जाके डेटा ले सकते हो। And guys, this is the complete guide which I wanted to tell you. These are the top MBA entrance exams. So CAT foundation है, whatever college that you are targeting,
टेक कैट सीरियसली, कैट विल डेफिनेटली गिव यू अपॉर्चुनिटी। टू, रजिस्ट्रेशन जल्दी करो, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। रजिस्ट्रेशन जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं। सो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किस ड्यूरेशन के अंदर एग्जाम कंडक्ट की जाती है। थर्ड, अपनी रियलिटी खुद के बारे में जानो, चेक करो कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेटर रहेगा, एंड आपके पास टाइम कितना है ये देखो। उसके बाद जो हिडन जेम्स के लिए कॉलेजेस है जैसे सच एम एस सी टी सी मैट, इनको भी फिल कर दो। पांचवा, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो डेफिनेटली लुक फॉर जी मैट, जिसकी वैलिडिटी 5 years है। So guys, if this video has helped you out, please give it a thumbs. And if this video has genuinely helped you, don't forget to like, share, subscribe to the channel, and we'll see you in the next video. All the best to you guys.